नमस्ते, सायोनारा, जहां भी हैं इस वक्त आई होप ठीक होंगे, सेफ होंगे। लॉकडाउन में तो तकरीबन सभी चल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के जो अच्छे कुछ असरात हैं वो ये हुए हैं कि वी आर नाउ कनेक्टेड टू फोर वेरी ब्यूटीफुल लेडीज। आई वाज अबाउट टू से चुड़ैल्स बट आई थॉट नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग? Walaikum Assalam. How are you, Mavish? Very Lovely well. to see you. Thank you, thank you. Lovely to see you all looking amazing, rocking this lockdown clearly, but also we will come to what is great and what is bad about being in lockdown. But definitely want to introduce you guys for people living under a rock who do not know who these amazing ladies are. Sarwat Gilani, welcome to this interview. She is one of the Chudels, right? Is that okay? Am I offending anybody by saying that? Absolutely, not at all. By the end of the interview, you'd like to call yourself one too. बस वो मैं वैसे पहले से ही अपने आप को कहती हूँ, वो तो खैर है, it's okay. Lovely, yes, sir, Rizvi. Thank you so much for joining in. But chalo, here I durst ayat. Nimra Bucha, how are you doing? Very good, Ji. Thank you very much. Lovely to be here. Great. And Meher Bano, welcome on the show. Thank you so much. How's it going? It's going good. How are you doing? Very well, thank you so much. So सबसे पहले तो ये बताएं कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है. I understand that Sarwat and Yasra are in Karachi and Bano is in Lahore and Nimra is also in Lahore. Karachi. Karachi. Okay. So Karachi में तो जी इस वक्त just at the time of this recording काफी crazy scene चल रहा है, काफी तेज बारिश हो रही है. लॉकडाउन कैसा चल रहा है सबसे पहले तो ये बताएं सब. Start with you, Sarwat. Well, it's been challenging, but it's been very rewarding also. I started doing art classes with my kids and it's been amazing. So I've gone back to my roots as an artist and I wasn't been able to do that. मुझे time नहीं मिल रहा था acting करते हुए और चीजें करते हुए. But मैं वापस cutter और glue और गत्ते और paper के साथ बहुत खुश हूँ. Lovely. That's so heartening to know that people are making these great lockdown, but no judging to anybody who's just basically been a potato all this time. Absolutely. Yasra, what about you? How's lockdown treating you? Actually, I also kind of went back to my roots because around the time the lockdown was happening, I was planning a stage performance. It was a monologue written by me and I was directing it and I was the performer. It's almost autobiographical in nature. And उस वक्त lockdown हो गया. So I'd already taken my stuff there to stage the performance and then I stayed back there. So I've been living in a basement for about 3.5 months and I just started going back and forth now that we're finally shooting that piece, which is no more just stage. It's a hybrid of documentary and vlog and film and stage. So, and that's what I'm shooting these nights. And in the daytime, we're doing all of this with Chudel. So two very significant things are happening at the same time. So it's been crazy. It's been rewarding. It's been a lot of fun. Amazing. That's great to know. Nimra, आपके क्या हालात रहे? How's the lockdown? How was the long lockdown? Slowly things are getting better. I know we've gone through various phases. मेरे ख्याल में पहले तो बहुत खुश हो रहे थे सब लोग और वो केक बना रहे थे घर पे बैठ के, आइसक्रीम बना रहे थे, कैसा वो खाना और लेकिन the good news is कि हमारी तलाक नहीं हुई अभी तक. मैं और मेरे हस्बैंड हम एक छत के नीचे 4 महीने से रह रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा और बहुत मतलब अभी तक full marks आवाज है ये. और जो लोग नहीं चीज सब ठीक चल रहा है, हम फिल्म में देख रहे हैं. This is the reality. तो ये मेरी मैं तो घर से चली गई, नहीं पा रही हूँ. शुरू में मैं ये सोच रही थी कि मैं झाड़ू देते हुए ऑडियो बुक्स सुनूंगी और मैं इस तरह बहुत सारी ऑडियो बुक्स सुन लूंगी, लेकिन बस वो आपको पता है थोड़ा हर एक चीज से आप गुजर के लॉकडाउन में आकर आप वहीं आकर खड़े हो गए जहाँ पे आप पहले थे और अब आप दुआ कर रहे हैं कि कोई आपको बुला ले, कहीं काम कोई दे ताकि आप घर से निकले. I don't know if anybody can beat this, but Bano, it's now up to you to, stop this up. I am not nearly as interesting as the rest of these women, but मेरे ऊपर तो बहुत टफ था इनिशियली बिकॉज मैं तो एक सोशल बटरफ्लाई हूँ. मैं तो बाहर जाना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है like I'm so far into it and I was so paranoid in the beginning that I feel like I can't go back to the way life was before the lockdown.
But I've been concentrating on my dancing and everything. I've been trying to shake it all off. जो भी tension हो रही है इस lockdown की वजह से, इस pandemic की वजह से. But it's definitely had some, I've seen some tough times also, like mentally speaking. I haven't been in a great place throughout, but it's not all fun and games, but it's also not all bad. I love it that women can keep it real. I love that there are no flowers and no ribbons. ये वह है, यही है. I've been stuck in a basement. I've had to deal myself with glitter and glue and all of that. And जो शादी के बारे में जो comment आपने मारा वो तो मेरा hands down favorite comment है, because ये नहीं accept करते लोग. And I think more people should accept it. वो जो my hubby my world वाली चीज है ना, वो तो I can always trust this, women to keep it real and sort of break the barriers. So good to speak to you guys. Breaking the barriers with Chudails. I just had a wonderful conversation with Asim. So I asked him this question, and this is the kind of, this is the way that I want to start the conversation about Chudails, is that I asked him, being a man telling a woman's story, which you are saying is a very empowering story. He's talking about misogyny, and he's talking about, the moral grays of how the world operates and women in those stories. What happens with your characters in terms of when you look at a script and say, this looks like it's written by a man, or this character is speaking not from what I would experience as a woman, even though it claims to be speaking for a woman's experience. Did you have any input in terms of as an actor or as a woman? And did you, were there any conversations like that? And once they happened, how did they come about? Nimra, you want to start? I'm going to give Nimra all the points because मैं दिल जीत लेता हूँ. बड़े हमारी बाद में बात करते हैं महवेश, बाद में अलग बात करते हैं. अच्छा, सो ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये हम बहुत कम सोचते हैं कि ये एक आदमी ने औरतों की कहानी लिखी है. And it took a man, after all of this stuff that we've been watching, all the regressive stuff that has been coming out of television, produced by women, written by women, directed by women, to have such a true to form, true to the life, the inner lives of women coming from a man. I think कि ये बहुत अच्छी बात है. और हम भूल जाते हैं अक्सर कि आसिम is a man, और हम उसको एक सिर्फ एक, as Sarwat likes to call him, the main Chudail, the mother Chudail. तो वो हमारी mother Chudail है, और मेरे ख्याल में उनके दिल के 4 टुकड़े हैं. हम वो चारों में जो हमारे किरदार हैं, सारा, बतूल, जुगनू, जुबैदा, ये सारे उन्हीं की शख्सियत के 4 हिस्से हैं, और उन्हीं की एस्पिरेशंस हैं कुछ उसमें, जो बदले की आग और गुस्सा और मजाक और all of those things. I think they're all so. आपको ये भी समझ में आता है कि एक्चुअली मर्द और औरत में इतना फर्क नहीं है जितना हम बना रहे हैं. So yes, so it's that's great. I think it's taken a man to write the story, and hats off to that man. बहुत हटके जो है, मतलब मैं हर चीज की प्रमोशन में लोग कहते हैं कि ये बहुत हटके है, लेकिन मेरे ख्याल में हम अभी मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने, शायद अदनान मलिक हैं जो अदाकार हैं, उन्होंने कहीं लिखा था कि लोग ये कहेंगे कि चुड़ैल्स के से पहले क्या था टेलीविजन और चुड़ैल्स के बाद क्या था पाकिस्तान में. तो आई रियली फील कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लोग ऐसे ही इसको देखें. एक माइलस्टोन है ये हमारे लिए कि इसमें औरतों की किरदार कशी कैसे की गई है, कैसे लिखे गए हैं किरदार, और कैसे अब स्टेरियोटाइप्स तो है ही नहीं, लेकिन it addresses so many characters. I mean, we were like hundreds and hundreds of actors, जो आ रहे थे, कुछ किस्तों के लिए आ रहे थे, कुछ जो मुस्तकिल उसमें थे, और हर एक का किरदार एक डिफाइंड किरदार था, उस पे उतना ही काम किया गया था. वो ऐसा नहीं था कि बैकग्राउंड में वो चल के जरा तुम ये सामान उठा के पीछे से चलना, that it wasn't like that at all. So everything was it was done justice to. So I feel like even apart from these promotional meetings, I will say that and I believe that. अदनान मलिक को बहुत फॉलो कर रही हो तुम? हैं? अदनान मलिक को बहुत फॉलो कर रही हो तुम? यार मैंने पढ़ा था उसका, मैं तो अच्छा, हमने तो कहीं कोट नहीं किया तुमने. अदनान मलिक को फॉलो करके घर पे मैं साथ अदनान मलिक की पोस्ट पढ़ रही थी.
कर दें, मैं आऊंगी वैसे इस पे। मेरा एक सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है एक्चुअली। क्वेश्चन एक है लेकिन आपके पास सेट ऑफ आंसर्स होना चाहिए, लेकिन उस पर मैं आऊंगी। सरवत मुझे अपने अपने उसके बारे में बताएं, जो आपका एक करियर ग्राफ रहा है। आपने टेलीविजन पे भी बहुत काम किया है, होस्टिंग भी बहुत की है, परफॉर्म भी बहुत किया है. What was it like working for something like this? And anyway, it's a novel experience for so many of you guys, and even as an audience for us also, it's very new to see original Pakistani content coming to us by Pakistanis as well. So tell me about working in a space like this, and then knowing that you will be one of the the people who have sort of in a way pioneered this whole movement, or whatever you want to call it, this moment, this milestone. What has it been like for you? Because now you see the mainstream Pakistani television content, and then you also see stuff like this. So what has it been like for you, and how do you see this moment? So Mavish, I feel and I was hearing where the conversation was going and how Nimra said, I'll just like to add to that. I feel that आज से पहले, आसिम के लिखने से पहले किसी आदमी ने औरत के लिए इतना अच्छा नहीं लिखा, इतना उसको समझ के in depth. Also because I feel Asim has grown up around sisters and more females, so he truly understands their milestones in life, and what women go through in our society. And I feel that is why he's able to understand women so well, and he's written this. And before this he had written this connection between two sisters. And so I feel that his work is very women centric because he's lived with it, so he truly understands everything. Secondly, I feel कि पाकिस्तान में हमने ज्यादातर टेलीविजन पे काम किया है या फिल्म में किया है, थोड़ा बहुत मैंने थिएटर में भी किया है. What I felt was that औरत को हमेशा विक्टिमाइज करके बेचा गया, या उसको सॉरी कार्ड उससे खरीद के बेचा गया. कभी बहुत रेयरली, आई थिंक पीटीवी के जमाने में औरतों को सेलिब्रेट करके एक स्टोरी बताई जाती थी. एंड आई थिंक इन चुड़ैल्स, Asim, contrary to what the name is, he's actually celebrating each woman in her life with her baggage and her experience. So, like how Nimra said that each character, whether uski appearance 4 scene ki hai ya 40 scene ki hai, wo usi अहमियत के साथ knitted लिखा गया है और फिर उसको direction दी गई है. So the emphasis on detail has been like a next level. It has empowered me to understand that detailing ऐसी भी हो सकती है, storytelling ऐसी भी हो सकती है, कराची को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. हम क्यों नहीं उन सारी चीजों पे बात करते जो कराची में हो रही है, जो पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया में औरतों के साथ हो रही है. So why can't we tell it in an interesting way? Because I see women around us and women around me have such interesting stories about their lives. Their lives are such interesting stories. So why isn't that being told? And thank my lucky stars and many blessings that I have because of people in my life. I feel I was so lucky to be part of this revolution that Churels will bring to a mindset. अब कहने वाले तो जो बहुत तरीकों के होते हैं, जो कहेंगे, वो कुछ कहेंगे ये नहीं चल सकता, टेलीविजन मटेरियल नहीं है, लेकिन at least they will go back home after watching this with a few questions in their mind and with a few changes in their mindset. So that's what Churel is doing. जो मान रहा है चुड़ैल को वो तो मान रहा है, जो नहीं मान रहा चुड़ैल को वो भी मान के जाएगा. At the end of the the revolution will be कि हर औरत अब पाकिस्तान में चुड़ैल कहलाने से डरी नहीं जाएगी, या वो उसको लगेगा नहीं कि कोई धुतकार रहा है. वो at the end of the season देख के कहेगी कि हाँ मैं भी इस क्लैन का हिस्सा हूँ, because मैं भी women's rights पे और अपने right पे और एक इंसान के human rights पे मैं खड़ी होती.
So I think this is a revolution, and I am so glad that it is finally happening in Pakistan, you know, Amazing. because we needed it. For sure, absolutely. It's a time of reckoning in terms of digital content, especially. I want to move to Banu and ask her. It's an interesting point that Sarvat raised, and I was also talking to Asim about it. And he led his conversation with this, saying that we're not trying to single out Pakistan, we're not trying to single out India, we're not trying to single out any one society. We want to talk about how speaking about these gender disparities is a global phenomenon. How have you any thoughts on that? What, because I know that you guys are all thinking beings and you're not just like actors का ये भी होता है. Some actors are like that. लोग हम इतना सोचते नहीं है कैरेक्टर के बारे में उस तरह. होता है मैंने देखे होते हैं कि सब हमें नहीं पता. अच्छा है, ठीक है, बुरा है, नेगेटिव है, जैसा भी है. हमें रोल की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता. लेकिन फेमिनिज्म इटसेल्फ इज वेरी पॉलिटिकल. तो बानो, आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट योर कैरेक्टर, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें. और ओवरऑल जो ये एक पूरा एक नैरेटिव है कि जी नया मूवमेंट है, इस मूवमेंट में भी कितने बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, वेव्स हैं. तो आपकी क्या थॉट्स हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में, और ओवरऑल एक ग्लोबल फिनोमेना जो इस वक्त बना हुआ है, कॉन्वर्सेशंस जो चल निकली हैं? महविश, असल में बात ये है कि मैं जब इससे पहले जितने भी अपने ड्रामे कर रही होती थी, तो ऑनेस्टली नाउ आई मीन वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर वर्कड दिस हार्ड ऑन अ कैरेक्टर बिफोर. बिकॉज बिफोर दिस हमने अपनी जगह, हर किस्म की कोई भी ड्रामा हमारे पास आता था, हम देखते थे, हम कहते थे हाँ ठीक है, वही सब कुछ है, यही सब कुछ है जो हम तब से करते आ रहे हैं और हमें अपनी जगह पता है. और ऑब्वियसली मैंने कितनी ही कोई एक्टिंग करनी पड़ जाएगी, मुझे किसी ना किसी मर्द से थप्पड़ खाना होगा, किसी ना किसी मर्द के नीचे लगा रहना होगा, मतलब ऑब्वियसली यही होगा. या फिर मुझे कम्प्लीटली एक डीमोनाइज्ड कैरेक्टर मिलेगा और उसके अंदर बिल्कुल एक लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है. आज तक हमें इस तरह से दिखाया गया है जैसे एक जिस तरह से मर्द हमें देखना चाहते हैं, वही वाले ड्रामे में आज तक करती आई हूँ. और ये सारी मेरी को एक्टर्स भी वही करती आई हैं. जिस तरह से हमें मर्द देखना चाहते थे वो हम कर रहे थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एनीवन फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एक्चुअली, मैंने तो मतलब जितना काम देखा उसके अंदर औरतों को इस तरह से दिखाया गया है कि एक तो पहली बात तो मर्द ने लिखा है, which is fine, but I feel like Asim is not disconnected from the problems that women actually face. And it is possible for men to see what women are seeing. It's just that they don't want to. Yeah, of course. So it's the first, I feel like Asim has more empathy than a lot of men, and I feel like this is a primarily this is a trait that's associated with females, कि empathy उनमें होती है ज्यादा. लेकिन खैर उन्होंने बहुत ज्यादा empathy का मुजाहिरा करके एक बहुत ही completely female centric script लिखी और एक female ensemble. जब हम सारे ही जब आए थे सेट के ऊपर और हमने देखा कि एक completely female ensemble है, और it was like a dream come true, because हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया हुआ था कि हम कभी यहाँ पे end up करेंगे and we would actually become part of a revolution like this. And even when we were working on this, we knew what we were doing. We knew that we were working towards something so huge, something so much bigger than us. इसीलिए कभी भी मेरा ख्याल है कोई सेट पे कोई मेजर मसला नहीं हुआ. हम सारे आपस में बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे because we all knew the importance of what we were about to do. And I feel like ये जब आएगा तो बहुत ज्यादा चेंज आना चाहिए. I'm not sure कि क्या होगा, but I feel like this was the need of the hour, and I'm so glad to be a part of this. That is amazing. That's so good to know, because मैंने आपका काम भी देखा और आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे अच्छे एक्ट्रेसेस के साथ यही हो रहा है. जैसे आपने कहा कि एक खास किस्म का मोल्ड हमें पकड़ा दिया जाता है और उसमें या अच्छी बन जाओ या अच्छी नंद बन जाओ, बुरी नंद बन जाओ, बुरी भाभी बन जाओ, अच्छी भाभी बन जाओ, वही किचन पॉलिटिक्स हमारी होती हैं. यस, आई वांट टू कम टू यू. आप बड़ी वोकल हैं और आप बहुत वीडियोस भी बनाती हैं, आप बहुत एक्सप्रेसिव भी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आप बात करती रहती हैं. कभी कभी ट्रोलिंग भी होती है जो कि मुझे लगता है खवातीन को, मेरे ख्याल से सबको यूज्ड टू हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ, खवातीन के लिए कुछ खास किस्म का एक डिफरेंट लेवल ऑफ हेट आता है. तो यस्रा, डिजिटल मीडियम पे
आर्ट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम एज विमेन जब हम कोई बात एक्सप्रेस करते हैं एज अपोज टू मैन, जब मर्द कोई बात एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी ओपिनियन को क्रिटिक किया जाता है, लेकिन जब औरत कोई बात एक्सप्रेस करती है तो उसके जिस्म, उसकी जो भी उसकी बिहेवियर है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसके साथ किसी किस्म का फिजिकल वायलेंस, इस तरह की कोई बात समहाउ आ जाती है, उसको शेमिंग के जुमरे में दिया जाता है. How do you see the future of something like this where women are so unapologetic about who they are? Do you think that this will help people be a little less critical of women, or do you think it's good for women to just sort of own up to it? What has been your experience so far, and what do you expect from Churels to make an impact out of this? अभी तो पर्सनली मुझे लगता है कि जैसा आपने मुझसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट के बारे में पूछा और उस पे आने वाले फीडबैक पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिजिटल कंटेंट और हम अपने हैंडल्स पे जो कंटेंट प्रोड्यूस करके लगा सकते हैं टू बिगिन विद, वो एक आई थिंक दीज आर द मोस्ट exciting times for any artist, because you're your own distributor, you can be your own content maker, and you have a lot of power at the moment, and it's out there. तो अब जब सरेआम तमाशा करता है और रागीरों से डरता है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल सकती कि जब आप सरेआम तमाशा करेंगे तो फिर तो हर तरह के लोग जो हैं वो हर तरह की बात करेंगे. और हम जो गुफ्तगू अभी ये तीनों ने की है इस इनकलाब के बारे में और फेमिनिज्म के बारे में, हम उस इनकलाब में बहुत पीछे खड़े हैं, जिस तरह हम डिजिटल में बहुत पीछे खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ मामला तो ऊपर नीचे ही रहे हैं पिछले कुछ सालों में. तो अभी चुड़ैल्स एक कदम है मेरे ख्याल में. हम वो मुल्क है जहां अभी 2-3 साल से औरत मार्च होनी शुरू हुई है. हमें अभी ये बहुत सारे इकदामात उठाने होंगे, लेकिन चुड़ैल्स एक बड़ा कदम है. क्योंकि वो एक बड़ा कदम है तो वो बहुत सारे लोगों को वो पुश दे देगा. हम इस रेवोल्यूशन में हमें बहुत कुछ करना होगा. अभी आगे बहुत कुछ आएगा, उसमें बहुत सारी ट्रोलिंग भी आएगी. और जब आप सदियों पुरानी इक़दार को चैलेंज करते हैं तो फिर ये तो होता है और ये होगा, क्योंकि एक रिवाज है, एक तरीका है जिस पे लोग हिले हुए हैं और चले जा रहे हैं, जमाने से चले जा रहे हैं. अब शायद इस वक्त मैं कि एक 80 साला खातून को एक्सपेक्ट ना करूं ना अपने खानदान में से कि वो ये चुड़ैल्स देखें और मुझे बहुत शाबाश दें. शायद ना करें, एंड दैट्स ओके, क्योंकि अब उनको क्या बदलने का फायदा. लेकिन अब ये जो कुछ थोड़े कम उम्र लोग हैं, जो या हमारी उम्र के भी लोग हैं, जो जिनके जहन अगर मुकम्मल तौर पे बदल ना पाए, तो भी वो कुछ इस तरह से समझ सकेंगे अच्छा बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो इस तरह का कंटेंट जो 10 किस्तों 1-1 घंटे की किस्त पे मुहित होता है, उसकी सबसे बेस्ट बात ये होती है कि वो आपको कॉन्टेक्स्ट मुहैया कर पाता है कि कोई इंसान कोई किरदार कोई बात कर रहा है या किस तरह बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है. उसकी एक बैक स्टोरी है, उसके एक बीच के हालात हैं, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट है जो उसके हालातों वाकयात ने की है, उसकी जुबान एक सर्टेन तरीके की क्यों है, वो कैसे क्यों सोच रहा है. तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है, आई थिंक फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान को दे पाएगा ये शो. और मेरे ख्याल में नॉट जस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान, ऑल द कंट्रीज जो कि हमारे साथ खड़ी हैं स्टेज वाइज इस मूवमेंट. बिल्कुल. अच्छा, मैं सीरियस हो जा रही है, and I really love this discussion. I have to say, I'm not going to change it because I don't like it. I love it, but I think there's so much fun involved in it, and I don't want to miss out on that because it looks fun. The poster looks fun. The characters look fun. So colorful. There's life coming out of it. There's so much red in it. थोड़ा खतरे की निशानी भी है, लेकिन it still looks fun. Passion की निशानी भी है. निशानी भी है, बेशक. मुझे 3 इंसिडेंसेस पूछने हैं आपसे. कोई 3 चीजें ऐसी, कोई जुमले आपके साथ किसी ने ऐसे बोले हो, किसी 3 दफा या 2 दफा या कुछ भी मुझे बता दें. कभी कभी कोई एक जवाब बड़ा जबरदस्त होता है, which is enough to sort of bring the house down. कोई ऐसा बात आपके साथ कभी किसी ने की हो after which you have said something which has completely shut them down, like brought the house down. तो कोई ऐसा कभी के साथ, I'm asking this because it is the time for women to hit back and clap back. तो हम इसको थोड़ा सा मैं टच करना चाह रही हूँ कि आपकी रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कभी किसी ने कुछ कहा हो और आपने ऐसा जवाब दिया हो कि खत्म हो गया, बस बात खत्म कर दी हो. सरवत, बहुत दफा हुआ है महविश. मैं काफी
प्यारी तरीके से ब्लंटली, बहुत रिस्पेक्टफुली, और आफ्टर डूइंग सारा आई थिंक आई बिकम मोर मेजर्ड, बट हाँ मतलब आई डोंट नो, द लास्ट इफ आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ माय हेड वाज, कोई मुझे बता रहा था कि उसको फिल्म लिखने का बहुत शौक है, और वो है कोई और बैंकर, नॉट बैंकर, कोई स्टॉक एजेंट या इस तरह कुछ है, और उसने मुझे इतनी बुरी स्टोरी सुनाई, इतनी बुरी, और वो मेरे घर में, मेरे ड्राइंग रूम में खड़े हुए 4 लोगों के सामने बता रहा था, एंड मैंने बहुत सहा, लेकिन जब वो इतनी बुरी हो गई उसकी स्टोरी, तो मैंने उसको कहा ये फ्लॉप है, ये कभी नहीं चलेगी, तुम इस पे अपने पैसे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी कुछ जाया नहीं करो, बैठ जाओ चुपचाप, अब कुछ अगला टॉपिक हम उस पे बात करते हैं. सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्लंट आई हैव बीन the last couple of weeks, and I think उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गया और उसने कभी नहीं बात की उसके बारे में. But I was mostly asking about any misogynist comment that you got, like अरे यार खाया पिया करो यार, या खाती पीती नहीं हो यार, या इतना खाती हो, उसके बाद आगे से आप भाई आप भी खा लें, इस तरह की चीजें होगी ना. Oh, like that, like I was asking, like, on the road and stuff. kind of stuff that हाँ. तो मैंने कपरीज पहनी हुई थी, और मैं एट सम पॉइंट अपनी बहन के साथ किसी शॉपिंग सेंटर गई थी, और हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो हम रिक्शे में बैठ के चले गए, और मैंने कपरीज पहनी थी, और रिक्शे में मेरा पैर ऊपर था और वो कपरीज टांगे नजर आ रही थी, तो मैं उतरी, तो वहां एक बंदा सामने बैठा हुआ था, कहता है ओ कपड़े कम पड़ गया, कपड़ा कम पड़ गया, शायद कपड़ा कम पड़ गया. So I turned around and I said, and I don't know how I was so quick at getting back at it. I said, तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे ये भी नहीं पहना था. Oh my God. Oh yeah. And wow. then I was shocked, but I was really happy that I had a really nice timely comeback. वरना मैं घर जाके सोचती मैं ये भी कह सकती थी, उसको ये भी कहना चाहिए था, और ये भी कहना चाहिए था. Oh my God. Okay. Bano, did you ever shut down a real life troll, or even online? I don't even mind online comebacks, honestly. Online तो बहुत बार किया है, but the one that I can really remember right now was when I was walking through Anarkali. I studied in NCA, तो अनारकली में चल रही थी, तो एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी ने मेरे कान के अंदर पंजाबी में बोला, नीति मेरी दुपट्टा ते पा लेना सी, which translates to दुपट्टा तो पहन लेती तुम, दुपट्टे के बगैर क्या कर रही यहाँ पे. So I turned around and I told him, तुम्हारा अपना दुपट्टा कहाँ है, तुमने क्यों नहीं पहना हुआ. This is the good one. Yes, and I can just imagine Bano standing in Anarkali and saying this to an old man. Yes, first story. यार मेरी तो कोई रियल लाइफ की तो कोई कहानी नहीं है ना, क्योंकि मेरी हमेशा से रेपुटेशन बहुत खराब ही है, बदतमीज सी लगती हूँ मैं लोगों को ना. हाँ, सख्त मिजाज सी, तो मेरे से नहीं को करता कोई इस तरह की बात. मैं बाहर वैसे नहीं निकलती इतना, तो मेरे कोई असल जिंदगी के नहीं है वाकयात. जैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते थे कि तुम्हें इतना टाइम हो गया है मीडिया में, तो तुम्हें किसी ने लाइन मारी है तुम पे. मैंने कहा पता नहीं, अफसोस की बात है कि ये खुशी की बात है, लेकिन नहीं मारी है. बट नहीं होता मेरे साथ ऐसा ना, तो मेरे पीछे ही करता है जो कुछ नहीं कुछ. आपने एक्नॉलेज ना किया हो. नहीं, मेरे पीछे पूछे ही होती हैं बातें. चुड़ैलें भी कहते हैं लोग, मुझे बड़ा बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मेरे मुंह पे नहीं कहते. ऑनलाइन ट्रोलिंग मेरे साथ हुई थी जब मैंने शादी की अपने से 10 साल कम उम्र लड़के से. तो उस पे तो फसाना ही बन गया ना इस मुल्क में बहुत ज्यादा, कि पूगर तो माँ लग रही है, तो पता नहीं बच्चा फंसा लिया. तो और मैं मोटी भी थी उस वक्त, और वो जरा स्मार्ट सा हैंडसम सा था, तो फिर बहुत ही लोग पीपल गॉट रियली वेंट टू टाउन विद इट ना. तो पता नहीं कि मुझे अब ये शट अप कॉल तो नहीं है, लेकिन मुझे फनी लगा था कि वो किसी ने लिखा नीचे कमेंट पे, अगर ये दाढ़ी मूंछ रख ले मियां इसका तो ये ठीक लगेंगे साथ. तो मैंने जवाब में कहा जब आई नहीं है तो फिर रखे कैसे. तो आई तो अब यही हुआ. सच है, उसकी नहीं आ रही ना दाढ़ी मूंछ. वो 27 साल का वो आदमी हो गया, लेकिन अब नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ ना. अब मैंने बाल कटवा लिए, मैंने चलो थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं. But yeah, that's my story. So like that's the only time I think I got massively trolled online. But I, honestly speaking, don't really give a shit. I never did. Good. That's the way it should be. Nimra, I'm sure you must have a killer answer. No, I don't. I promise. मैं इतनी डरपोक कोई इंसान हूँ, मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं इतनी शराफत से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करती हूँ, ना माने, नाराज ना हो जाए.
तो इसी यही मेरी इतनी लंबी शादी का राज भी यही है कि मैं बहुत कुछ, लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगता है हम खराब करेंगे इसको, हम खराब कर रहे हैं पिछले साल से इसको, कोई फायदा नहीं, स्टोरी नहीं है उनके पास। नहीं, मैं ये आपको लॉकडाउन हो गया ना। नहीं, ये इतना बोर आंसर है इसका, क्योंकि वाकई जब मैं ये कैरेक्टर भी कर रही थी तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि ये बिल्कुल किसी से अपोलोजेटिक नहीं है, बहुत सीधी बात करती है, और मैं सीधी बात तो कर ही नहीं सकती, मैं तो डिप्लोमेसी में इतनी ज्यादा मर जाती हूँ कि मुझे सॉरी और दूसरे की भी इंसल्ट जो है ना, वो मुझे बहुत बाद में समझ आती है। तो अब ये है कि जब आई थिंक जब मेरी शादी नहीं हुई थी और हम लोग, माय हस्बैंड एंड आई वर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, तो उन्होंने एक दफा वो कुछ किया करते थे स्टोरीज अपनी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो उस स्टोरी को कर करके बोर हो गए थे काफी। तो वो आपको पता है ना, हर वो मंथली मैगजीन होता है, उसमें हर 2-3 महीने बाद आपको एक और आपको करना होता है। तो फिर उन्होंने एक दिन, क्योंकि हम लोग नए थे उस वक्त, एडिटोरियल असिस्टेंट थे, तो वो सीनियर रिपोर्टर थे, तो उन्होंने फिर एक दिन ये कहा कि ये स्टोरी ये भी कर सकती है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि ये तो ऐसी स्टोरी तो ये भी कर सकती है। तो इतना ज्यादा कुछ इंसल्टिंग सी वो बात थी, उसके बाद अभी तक वो मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है, और मैंने फिर तरह तरह से उस चीज का बदला लेने की कोशिश की है, लेकिन मैं वो एग्जैक्टली वो जवाब नहीं दे पाई अभी तक नहीं दे पाई है यार। ये क्या, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने दे दिया जवाब लेकिन जैसे मैंने जवाब दे दिया, आप सोचे फिर क्या होगा। हाँ नहीं, लेकिन देखें ये तो चुड़ैल्स का इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना, कि आप लोग कुछ करें, यसरा आप कुछ हेल्प करें। मैं तो करे कर पागल हो गई हूँ, हेल्प मेरी बात कोई सुने तो मैं तो तैयार हूँ हेल्प करने के लिए। हम काफी कोशिश कर रहे हैं महवेश जी, निम्रा मुश्किल है। अच्छा, हम कोशिश जारी है भी हैं बीच में। Acha. Just quickly signing off with one comment from you guys. Sarvat, I want to start with you and ask just one very big, very important, very relevant question. And you have to just answer it like that. And the question is, and I'm going to ask everyone the same question, but I'm going to start with you, Sarvat, because I think Sarvat has a previous commitment and she has to unfortunately exit the conversation. But Sarvat, what does being a Chudail mean to you? Well, in a nutshell, I feel that I think पहले आप बहुत नाइव होते हैं जब आप समझते हैं कि आप दुनिया को बदल देंगे. So you're trying to be smart and you're trying to be clever. But I think जब आप चुड़ैल बन जाते हैं तो आप में wisdom आ जाती है, तो आप wise हो जाते हैं. तो I think कि मैं सारा के बाद और चुड़ैल करने के बाद थोड़ी सी measured और थोड़ी सी wise हो गई हूँ. और I think primarily that's what I felt. And चुड़ैल in itself means अब मुझे पता चला है कि जो असल चुड़ैल होती है वो क्यों इतनी लोग उसके पीछे क्यों इतना पड़े रहते हैं. वो इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि वो एक्चुअली बड़ी स्ट्रांग होती है और वो ओपिनियनेटेड होती है और वो कहती है जो उसके दिल में होता है. तभी सालों से लोग जलाते आ रहे हैं चुड़ैलों को. और आज हमारे माशरे में जब खवातीन कुछ बोलती हैं तो उन्हें जला नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली वो, या फॉर्चुनेटली फॉर अस, बट वो उनको चुड़ैल कह सकते हैं. So this entire concept will very soon be changed and we will be talking about and being a Chudail very proudly. Yeah. Amazing. Thank you so much. So if you have to leave, I know you have somewhere to go. Thank you so much, Sarvat, yes. for being part of it. Looking forward to it. Yes. And Bano has joined us. Yes, and I love you girls, and I'm going to take a picture. Can we take a picture? Can we take a picture? Yes. Okay, let's take a picture. Who's taking a picture? I've just taken it. Okay. Okay, great. Are we done? Yes, thank you so much, Sarvat. Thank you. Thanks, guys. Have a lovely evening. Thank you so much, guys. That was Sarvat signing off because she had a previous commitment, but we thank her so much. It's such an amazing answer that she gave, that you have to own the word Chudail. Yasra, I want to come to you with this question. What does being a Chudail mean to you? And then Bano, I'm going to come to you next. I think Chudail is like the new definition for a self-aware and
powerful woman. I'm hoping, and for me, this word is synonymous to being aware, being there in the moment, and not letting anyone not allow anyone to be unfair to you in any way. Yeah. तो चुड़ैल होने का मतलब जो है वो हक पे होना है और लोगों के हकूक की बात करना है और इसको खामोशी में बदलने की, जैसे निम्रा ने पता नहीं इसमें कहा था, इतने इंटरव्यू हो गए मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन निम्रा ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि खामोश होने को रिवाज बनाना जो है वो एक खतरनाक बात है. तो अगर एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है हमारी आबादी का, इंसानों का, औरत, वो अगर अपने हकूक की बात करे तो उसको चुड़ैल कहा जाता है. तो ये अच्छी बात है. अब हम इसको ओन भी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम बात भी करते रहेंगे और हाँ हम हैं चुड़ैलें. कर लो जो करना तो okay, awesome. कर लो जो करना. Bano, what does being a चुड़ैल mean to you? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो एक बात लड़कियों को सुननी पड़ती है वो ये है कि औरतों को सब्र से काम लेना चाहिए. सब्र करना चाहिए इन द फेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटी. चाहे आपको कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, ज्यादती कर रहा हो, बस सब्र करें आप, सब ठीक हो जाएगा. अल्लाह आपके हक में बेहतर ही करेगा. मेरा ख्याल है ये वाली कंप्लेसेंसी, इसको खत्म करना, ये है, that's what it means to be a चुड़ैल for me. It's about finally actually standing up for what it is that you believe in and fighting for what is yours and then taking it by force even if it's not given to you. अगर आप मांगो और आपको ना मिले तो आप उससे छीन लो. जो आपको नहीं मिल रहा अगर आपका हक, तो आप उसे छीन लो. मेरे लिए ये है. ठीक है. अमेजिंग. निम्रा जी, नैविश, तो मैं ये कहूँगी कि हमें चुड़ैल का बचपन से बताया जाता है. हमें अंग्रेजी कहानियों में भी चुड़ैल मिलती है, हमारी कहानियों में भी चुड़ैल मिलती है. और वो चुड़ैल एक ड्राउनी सी होती है. वो एक उस उम्र की होती है जिस उम्र की अब मैं हूँ. और वो अकेली होती है. उसके चेहरे पे बहुत सारे बाल और दाग और उसके बाल कंघी नहीं हुए होते. वो जंगल के बीच में एक घर में रहती है अकेली और बच्चों को खाती है. तो आई थिंक कि अब जो चुड़ैल की जो डेफिनेशन जो अब हमारे लिए औरतों के लिए इस्तेमाल जो होती है वो उसी से कहीं से निकलती है कि जो औरत चुड़ैल है वो बदसूरत है, उसका वक्त निकल चुका है कुछ करने का. उसको बोलने का कोई हक नहीं है, वो झूठी है, वो हमें खा जाएगी. तो मैं समझती हूँ कि हाँ, मैं चुड़ैल हूँ. हर औरत चुड़ैल है जो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकती है, अपनी जरूरतों को समझ सकती है, जो नाइंसाफी को देख सकती है, उसके बारे में बोल सकती है. और जिस जंगल के बीच में वो रहती है वो सारा जंगल भी उसी का है, उसी ने बनाया है, वो उसी. और मैं चाहती हूँ कि अब मैं एक जंगल के बीच में ही रहूं, मुझे कोई तंग ना करे. तो चुड़ैल वो है जो किसी को तंग नहीं करने देगी. अब कोई तंग नहीं करेगा किसी चुड़ैल को. तो ये है मेरा. बेहतरीन. बहुत शुक्रिया. I'm the queen of this whole damn jungle. That's it. Mic drop. Thank you so much for your time, everyone. बहुत शुक्रिया आपका. Godspeed. Looking forward to the whole series once it drops. Guys, it drops on the August of 11th on Z5. Check it out, join, subscribe, and see how you can watch it on your phone, on your website, or wherever it is you're watching. Exciting content, exciting times for Pakistani content and Pakistani artists, especially Pakistani women. Thank you so much, guys. Once again, thank you so much for your time. Thank you, Mary. Bye. Bye. Thank you. We love See you it. guys. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.